A very good morning to my dear student. Today I am going to start with you chapter number 1 from class 9 Beehive book. The Fun They Had. It is written by Isaac Asimov. Isaac Asimov ने ये चैप्टर को लिखा है The Fun They Had. Before we start the chapter, I just want to tell you कि we have already started our live batches for spoken English. If you want to join those batches, you can call us at this number. In this class, we have every day we have a live class, one-to-one mentorship. We always give preference to the interaction of the students. Students interact in this class so that they can develop their speaking skills in the class. This is a very good course. If you want to join this course, you can call us at this number. Now let us start the chapter. The Fun They Had story is set in future. It will make all you love school. By reading this story, you will all started loving to school. अपने स्कूल से आप प्यार करने लग जाओगे जब ये आप स्टोरी को पढ़ोगे, because you will realize that how important school has in our life. School is important in our life. This story is regarding school life and how those children who do not go to school miss school. The setting of the story is in future, when perhaps there will be no school, no books. Now how those children will miss going to school and will feel that their ancestor, that is the present generation, you all had a fun going to school, meeting and helping each other. In the end, we come to know that this is an imagination of a young girl named Margie, who comes to know that their ancestor used to go to school and all the children used to study together. She feels that they all had a lot of fun. इस चैप्टर को, दिस इज अ चैप्टर इज सेट इन फ्यूचर. फ्यूचर में ये चैप्टर को लिखा गया है कि फ्यूचर स्कूल कैसे होंगे. फ्यूचर में बच्चे, हाउ डू द स्टूडेंट्स विल स्टडी इन, हाउ डू द स्टूडेंट्स स्टडी इन फ्यूचर. फ्यूचर में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे. एक यंग गर्ल मागी की ये इमेजिनेशन है, यस, फ्यूचर स्कूल. और वो शी फील्स दैट दे ऑल हैड अ लॉट ऑफ फन व्हेन दे वेंट टू स्कूल. और उसको पता चलता है व्हेन शी फाउंड अ बुक फ्रॉम द एटिक ऑफ हर ब्रदर फाउंड अ बुक फ्रॉम द एटिक ऑफ देयर हाउस, and they found that how it was a fun for the children when they go to school. And when we read the story, we feel that school life is very good and we are fortunate that we have a real school where we go meet friends and get chance to study together. When we read this chapter, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और हमें फिर पता चलेगा कि हम कितने किस्मत वाले हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमें स्कूल जाने का चांस मिल रहा है और बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हम कैसे मिलकर पढ़ाई करते हैं. नाउ लेट अस रीड द चैप्टर. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर. जो स्टोरी को हम रीड करने जा रहे हैं वो फ्यूचर में सेट की है. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो ऑल ऑफ देम परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. व्हेन बुक्स, जब बुक्स और स्कूल्स नहीं होंगे, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, बच्चे फिर कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया. दिस इज अ डायग्राम गिवन हियर कि हाउ द स्टूडेंट्स विल स्टडी व्हेन देयर विल नो स्कूल. लर्निंग, दे विल, द स्कूल ऑफ फ्यूचर कैसे होंगे, दे कंप्यूटर से बच्चे पढ़ेंगे. देयर विल बी अ वर्चुअल क्लासरूम्स, नॉट रियल क्लासरूम. रोबोटिक टीचर्स होंगे, ह्यूमन बींग्स एज ए टीचर नहीं होंगे, रॉबोट होंगे. And moving e-text. They don't have their books to read, they will read from the screen of the TV or a computer. Now let us start the chapter. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, today Tommy found a real book. Margie, who is the main character of the story, has written this is the imagination of a little girl, that in her diary she has written on the page 2157. Now we are in 2020 और ये उसने स्टोरी लिखी है व्हेन वी आर इन द 2115
57, 17 May 2157. Today Tommy found a real book. आज टॉमी जो उसका ब्रदर है उसको एक रियल बुक मिली है, जो असली बुक होती है, दैट बुक दैट वी रीड इन दीज डेज, जो हम आजकल बुक्स पढ़ते हैं, वेयर देयर इज़ अ प्रिंटेड लेटर, जिसके ऊपर प्रिंटेड लेटर्स होते हैं, वो एक वैसी एक बुक मिली है उसके ब्रदर को. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय. वो बड़ी ही पुरानी बुक है, और मार्गी के ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वो लिटिल बॉय थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर. उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि एक टाइम था जब उनके ग्रैंडफादर पढ़ते थे, स्कूल्स में पढ़ते थे, स्टडी करते थे, तो बुक्स जो थी, स्टोरीज जो थी, वो एक प्रिंट होती थी पेपर पे. Stories were printed on the paper. They turned the pages which were yellow and crinkly. और वो अपने पेजेस को टर्न कर रहा था, उसकी बुक के पेजेस को टर्न कर रहा था, वो येलो हो गए थे और क्रिंकली हो गए थे. क्रिंकली मीन की लाइनों में फोल्ड्स आ गए थे, पुराने हो गए थे. It was very awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. वो कहता है कि ये तो बड़ा मुश्किल है इस तरह से पढ़ना कि जो बच्चों को, बिकॉज दे हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग द वर्ड्स फ्रॉम द कंप्यूटर और द टीवी स्क्रीन, जो वर्ड्स मूव करते रहते हैं, वो एक जगह स्टिल नहीं होते जैसे बुक पे होते हैं. तो वो कहता है कि इस तरह से पढ़ना तो बहुत मुश्किल है कि वर्ड्स जो स्क्रीन की तरह मूव ही नहीं हो रहे, वो स्टिल हैं, एक जगह पे रुके हुए हैं, उनको स्क्रीन की तरह मूव होना चाहिए. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. अब वो जब पेज को टर्न करते हैं, सेम वही तरह के वर्ड्स आ जाते हैं. बुक तो ऐसी होती है, अब पीछे पेज टर्न करोगे, सेम वही वर्ड्स आ जाएंगे. और दे फाइंड इट, वी कैन से, इट इज़ वेरी strange thing for them, very strange. They find it very weird that how when we turn the page, the same letters are again repeated over there, because they always have seen the words which are moving on the screen. "Gee," said Tommy, "what a waste. When you are through with the books, you just throw it away, I guess." कहता कि कितनी गलत बात है, कि कितनी वेस्टेज है, जब तुमने बुक पढ़ ली और तुम उसे थ्रो कर दो, वेस्ट कर दो. A television screen must have had a million of books on it, and it is good for plenty more. I wouldn't throw it away. कहता, on my television screen there are so many millions of books are over there. We don't have to throw the books. Others can also use the same books, because it is always in the memory of the computer or on the TV screen. Same with mine, said Margie. कहती, I agree with you. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. Tommy is a elder brother, and Margie, she is just 11 years old, and she has not seen so many telebooks that Tommy had seen. Tommy is 13, so that's why he had seen more books, more e-books. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking, because he was busy reading in my house. कहते हैं मैंने अपने घर में मिली है, और उसने उसकी तरफ देखा नहीं, मार्गी की तरफ, जस्ट पॉइंट किया कि उस एटिक में से मुझे मिली है. एटिक इज़ अ स्पेस बिलो द रूफ एज अ स्टोर रूम. स्टोर रूम में एक हम ऊंची सी जगह बना देते हैं जहाँ हम अपना पुराना सामान स्टोर करते हैं. दैट स्पेस इज कॉल्ड एटिक. उसने देखा कि, और वो अपनी पढ़ने में बिजी था, उसने जस्ट पॉइंट किया, इशारा किया कि वहाँ से. व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल? कहती किसके बारे में है? कहता स्कूल के बारे में. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. बिकॉज मार्गी डजंट लाइक स्कूल, because she hate the school, so that's why she said what's to write about school? स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है? मार्गी always hated school. मार्गी को स्कूल कभी भी पसंद नहीं थे.
बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. अब तो वो उसे और भी ज़्यादा स्कूल से नफरत हो रही थी, बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully. उसका जो मैकेनिकल टीचर, हु इज़ अ मैकेनिकल टीचर, रॉबर्ट, because it has already in the beginning of the chapter it has already explained that in 2157 in our future school there might be no human teachers. We will have to study from the Roberts only. Robert is a mechanical teacher. ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो कोई मशीनों का ही बना हुआ टीचर है जो उसको ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट देता जा रहा है. बट शी इज़ डूइंग वर्स एंड वर्स. वो टेस्ट को अच्छा नहीं कर पा रही, बहुत बुरा से बुरा टेस्ट होता जा रहा है. और उसकी मदर ने, उसके तब तक टेस्ट बुरे ही होते जा रहे थे, और उसकी मदर ने अल्टीमेटली एंड में उसकी वो जो मशीन थी और रॉबर्ट उसको कंट्री इंस्पेक्टर को दिखाने के लिए भेजा, चेक कराने के लिए भेजा वो उसको. और वो ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विद रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल एंड वायर्स. वो राउंड छोटा सा मैन था, मोटा सा मैन था, लाल सा उसका फेस था, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. और उसका ऐसे लगता था कि पूरा डायल्स और वायर्स ही उसके साथ साथ है, इस तरह का अपने ऊपर बस ऐसे ही लपेटी हुई थी. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट. उसने मार्गी की तरफ देखा, उसे एक एप्पल दिया और टीचर को वहाँ से साइड पे ले गया. मार्गी हैड होप दैट ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी को पहले आशा थी, मार्गी हैड होप दैट ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी को होप थी कि उसको ये ठीक करना नहीं आएगा, बट ही न्यू ऑल राइट, पर उसे आता था. एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद ही देयर वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक, उसके सामने एक बहुत ही बड़ा लार्ज और अगली सी बिग स्क्रीन आ गई, और जिसके पर सारे लेसन दिखाई दे रहे थे, क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था. द पार्ट मैजिक हेटेड, अभी वो इतना बुरा पार्ट नहीं था जो मार्गी हेट करती थी, जिससे मार्गी हेट करती थी. अब हेट करने वाला पार्ट कौन सा था, दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर. टुडे we have read only half of the chapter. Rest of the chapter we will finish it in our next video. Now I again want to tell you, please join our English speaking course. It is a very good course for personality development as well as to improve your speaking skills also. I hope this chapter is clear to you. Till then, thank you.